Good afternoon, sir. Good afternoon, Priyanshi. गुड इवनिंग सर। Good evening. ठीक हो सर? Uh-huh. Doing well, doing well. How are you doing, Mayank? Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, we'll start in less than a minute. Just it's still a few more seconds to go. Okay, we will continue with the revision that we were doing of the magnetic effects of current. Okay, so this was the question we were doing last time. Why is it better to place the iron piece inside the solenoid to magnetize rather than outside it? What is the reason for this? क्या रीजन है इस चीज का? हम मैग्नेटाइज करने के लिए आयरन पीस को ये कहते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर रखो. Good afternoon, sir. Good afternoon. Why do we say that? Not outside. क्या डिफरेंस है सोलेनॉइड के इनसाइड और आउटसाइड में? I have told this yesterday. We did this yesterday. I'm just starting from there. So what is the difference? That the strength of magnetic field is stronger out inside the solenoid rather right? than outside. Yes, absolutely. So solenoid में अंदर जो है बहुत strong field होती है और बाहर बहुत ज़्यादा strong field नहीं होती है. ठीक है? Okay, let's move from here. This was the last question I think we discussed. Why is a soft iron core preferred over hard iron core when forming an electromagnet? सोलेनॉइड के अंदर जो हम पीस रखते हैं जिसको हम कोर बोलते हैं, आयरन कोर, वो यूजुअली आपने पढ़ा है कि सॉफ्ट आयरन कोर रखना है. वो सॉफ्ट क्यों होना चाहिए? एक हार्ड आयरन लाइक स्टील क्यों नहीं ठीक है? Why do we need a soft iron core? Any idea? सर आई थिंक इससे टेम्परेरी जो होता है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, नॉट परमानेंटली. Yes, so you are almost there, right? So उसके दो रीजन हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर जो है इजी टू मैग्नेटाइज है. ठीक है, तो क्विकली मैग्नेटाइज हो जाएगा एंड ऑल्सो इजी टू डीमैग्नेटाइज है. ठीक है, इजिली मैग्नेटाइज भी होता है, इजिली डीमैग्नेटाइज भी होता है. और जो हार्ड आयरन है वो डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज है और एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज है. राइट? और इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमें यही दोनों प्रॉपर्टीज चाहिए. An electromagnet should be easy to magnetize and also easy to demagnetize. Right? Why is it? For example, a common use of electromagnet देखते हैं. मान लीजिए common use of electromagnet is to lift cars from the junkyard. Right?
इलेक्ट्रोमैग्नेट से लिफ्ट करते हैं जंक यार्ड में कार से, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आया, उसको ऑन किया इलेक्ट्रोमैग्नेट को, ये कार उस पर चिपक जाती है. Then the crane puts the car elsewhere, and when they switch off the power, it should also release it. अगर चिपकी रहेगी तो then you can't use it again, right? So मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज दोनों आसानी से होता है सॉफ्ट आयरन, इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं. State things that you can do to make an electromagnet stronger. By increasing the number of turns in the coil, by increasing the strength of magnetic field, and by increasing the strength of current. Okay, so 2 of your answers are correct. Okay, so the first is increase number of turns. Okay, the second is increase current in the circuit. ठीक है, by increasing the magnetic field is not the correct answer because that is the outcome. है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रांग बनाने का मतलब क्या है कि उसकी इलेक्ट्रिक, आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना चाहते हो, ठीक है ना, वो आप पहले नहीं कर सकते. ओके, और जो तीसरा आंसर आप दे सकते हो, प्लेसिंग एन आयरन कोर और सॉफ्ट आयरन कोर. If already not there. ओके, यूजुअली होगा वो ऑलरेडी, लेकिन नहीं है तो सॉफ्ट आयरन कोर सोलेनॉइड में रखने से उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग बनेगा. ठीक है, वो यूजुअली होता ही है. तो जो मेन 2 आंसर जो आपको देने हैं, जो मेन 2 है वो ये है, इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स एंड इंक्रीज करंट इन द सर्किट. वेरी गुड. Why does a current carrying conductor experience a force when placed in a magnetic field? ठीक, I can't hear you, Disha, if you're answering. Okay, so now we move on to the second part of the chapter. First part क्या था कि electric current produces magnetic effect. ठीक है, अब हम second part of the chapter की बात कर रहे हैं, जिसमें what do we say that a current carrying conductor experiences a force in magnetic field. ठीक है, और ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि जब करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट जनरेट्स इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. If it behaves like a magnet, it will experience a field in a magnetic field. It will experience a force in magnetic field. ठीक है ना? So a current carrying conductor experiences a force in magnetic field because it itself behaves like a magnet. And any magnet in magnetic field experiences a force. ठीक है? तो ये पहले से हम दूसरे पार्ट में आ गए हैं चैप्टर के, और दोनों डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हैं. ये उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है. ओके, can it so happen that a current carrying conductor is placed in a magnetic field and it does not experience any force? ऐसा कर सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, लेकिन उस पर कोई फोर्स भी ना लगे. No, it is not possible. थोड़ा और सोच के बताइए. लेट मी से इट इज पॉसिबल. सो कैसे होगा पॉसिबल? So yes, when neither current carrying conductor and the another magnetic field is in relative motion.
नहीं, उससे रिलेटिव मोशन का यहाँ पे कोई फर्क नहीं है. ओके, रिलेटिव मोशन हैज नो इम्पैक्ट ऑन दिस फिनोमिनन. उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, जो हम थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर है, यानी इंडक्शन पर. अभी हमें रिलेटिव मोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें. देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए ये हमारी फील्ड है. फील्ड को यूजुअली बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ से भी हो सकता है, बुक में रिप्रेजेंटेड हो. ठीक है, तो ये हमारी फील्ड है. ठीक है, और ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई जा रहा है. तो क्या ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स. Okay, it will experience no force. Arshita, Masuma, Ujjwala, I can't see anybody's video. A lot of students' videos are on, but they are blank. Anshika, Good afternoon, sir. good afternoon. ठीक है. मुकुल, रुद्रा शर्मा वीडियो ऑन कीजिए. शेखर वीडियो ऑन कीजिए. एंड शिव गर्ग वीडियो ऑन कीजिए. एंड विशाल श्वेता भाटी वीडियो ऑन कीजिए बेटा. और जिनके वीडियोस ऑन है मगर विजुअल नहीं आ रहा है, तो वो उनको भी अपना विजुअल, बेटा वीडियो ऑन का मतलब केवल ऑन नहीं ना, हमें दिखने चाहिए. आप जैसे मासूमा और खुशी आप हैं, लेकिन आपका वीडियो ऑन है, बट वी कांट सी यू. एकदम कुछ कवर्ड है या डार्कनेस है, क्या है, आई डोंट नो. रुद्रा शर्मा वीडियो ऑन कीजिए. एंड शेखर कशाना वीडियो ऑन करो बेटे. अर्शिता, आप रुद्रा शर्मा, भी नहीं दिख रहा है वीडियो. रुद्रा शर्मा सर, ये मुझे जो लग रहा है रुद्रा शर्मा है नहीं यहाँ पर, और इसको आप रिमूव कर सकते हो. रुद्रा शर्मा क्लास 10 थे, रोल नंबर 24. हाँ, ओके, या आई एम रिमूविंग. उज्जवल, सर मेरी ऑन है, तन्वीर, मेरे नंबर में एक और है, पता नहीं कौन है. सर ये उज्जवल के नाम से जो दूसरा है उसको रिमूव कीजिए. हाँ हाँ, आई एम जस्ट. उज्जवल 10C लिखा हुआ है, उसको रिमूव करिए आप. उज्जवल 10C वाला गलत है ना? हाँ जी, हाँ जी. नो नो, उज्जवल 10C जिसने लिखा है वो ठीक है. उज्जवल उज्जवल 1035 रोल नंबर, ये सही है सर. है ना. और जिसने और अब डॉट आ रहा है लिखा हुआ, उसको डिलीट करना है, जिसका डॉट आ रहा है लिखा हुआ. हाँ, एक सेकंड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड हिज नेम नाउ. हाँ, उसने अपना नाम हटा दिया. आई विल जस्ट रिमूव. ओके. हाँ, अर्शिता, आपका जी सर, thank विजुअल नहीं आ रहा है, प्लीज करेक्ट इट. यू शुड. मुकुल भारद्वाज, मुकुल भारद्वाज बेटा वीडियो Sir, ऑन करो. now I have already done so. ओके, ठीक है. ठीक है अर्शिता, लेकिन आपका विजुअल अभी भी नहीं आया है. ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना. वी विल नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट नाउ, बट चेक इट व्हाई योर विजुअल. मैं दोबारा एक बार क्लास में एंटर हो जाती हूँ एंड देन लेट मी सी. ओके, श्योर, प्लीज डू दैट. ओके, तो
ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। आप राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो जो इसका फील्ड है ना और ये जो एग्जिस्टिंग फील्ड है ये 90 डिग्री पे है, राइट। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि देयर इज नो फोर्स। Okay, so when the current carrying conductor is parallel to the field, there is no force on the current carrying conductor. Okay, तो जब आप इलेक्ट्रिक मोटर भी पढ़ते हैं उसके डिजाइन में हम ये कोशिश करते हैं कि वो हमेशा परपेंडिकुलर रहे कंडक्टर उससे, राइट। उसका यही रीजन है कि अगर वो पैरेलल हो जाए तो कोई भी फोर्स नहीं होती है। Understood this? ओके तो एंगल पे डिपेंड करती है फोर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, हाउ कैन वी मैक्सिमाइज द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड? इस फोर्स को हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं? मिनिमाइज कब कर सकते हैं? जीरो कर सकते हैं फोर्स को। कैसे? उनको पैरेलल करके। उसी तरीके से अगर हम उनको 90 डिग्री पे कर दें तो वो फोर्स जो है मैक्सिमाइज हो जाएगी। कि कहने का मतलब अगर ये हमारी फील्ड है और करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे बना दिया तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम फोर्स एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ 0 डिग्री एंगल है, पैरेलल है। दिस इज द कंडीशन ऑफ जीरो फोर्स। ओके, state a convenient rule that can be used to determine the direction of force on a charge moving in a magnetic field at 90 degrees to it. ठीक है, एक Fleming's left hand rule. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारे पास फील्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। हाउ डज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वर्क? We have to stretch our middle finger, the index finger, and the thumb in such a way. ये दिशा In your such, voice. हाँ, आप बोलो। in such a way that they are mutually perpendicular to each other. The direction in which the index finger point gives us the magnetic field direction, and the middle finger gives us the direction of current, and the direction in which the thumb points gives us the direction of force. Very good, excellent, right? So for this first thing we have to use our left hand। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड को इस तरह से होल्ड करना है कि जैसे you know like a gun we are holding as if we are going to shoot with that hand, right? This is the thumb, this is the forefinger, and the middle finger is actually coming out of the paper. The other fingers are folded like this we are holding. So this is coming out of the paper. One convenient way to remember is F for forefinger and F for field. मिडिल की जगह इसको हम बोल देते हैं सेंट्रल फिंगर। ओके, सेंटर फिंगर। तो C for center and C for current. Okay, so this is one convenient way to remember the Fleming's left hand rule. Okay, and the thumb is the T for thumb and T for thrust. Okay, thrust is another word for perpendicular force. Okay, so this way we can easily remember कि कौन सी फिंगर की डायरेक्शन में क्या चीज होती है, right? Now this is the direction of the positive charge, तो करंट का भी यही डायरेक्शन होगा।
फील्ड का डायरेक्शन गिवन है. सो नाउ टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन दिस चार्ज. Use your left hand and try to find the direction. Everybody try to use your left hand and try to find the direction. बताइए, who can tell me the direction of force? Sir, into the page. Into the page. Okay, so the force is into the page. Okay, तो into the page को हमेशा हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, और आउट ऑफ पेज को हमेशा ऐसे दिखाते हैं, ठीक है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ये इनटू द पेज है, ये आउट ऑफ द पेज है, ठीक है. याद रखने के लिए ये चीज आप ऐसा सोचिए, एक एरो है, ऐसे होता है एरो, राइट. तो अगर वो पेज में से बाहर आ रहा है तो व्हाट विल यू सी? यू विल ओनली सी दिस टिप, व्हिच इज दिस टिप. व्हेन इट इज गोइंग इनटू द पेज तो आप पीछे से देख रहे हैं उसको, यू आर सीइंग दिस फिन्स. ओके, द फिन्स ऑफ द एरो आर विजिबल. तो ये इनटू द पेज है, ये आउट ऑफ द पेज है. ये नोटेशन याद रखिए. वैसे ज्यादातर आपके पेपर में दोनों नोटेशन के साथ हमेशा लिखा भी होता है कि द फील्ड इज इनटू द पेपर, इज आउट ऑफ द पेपर, ज्यादातर लिखा होता है. लेकिन फिर भी आपको ये नोटेशन खुद से भी पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है. सो द फोर्स इज इनटू द पेपर. Why do commercial motors use electromagnets instead of permanent magnets? Because they need high magnetic field strength. Very good. Because permanent magnets से electromagnets can be much stronger. ठीक है. Permanent magnets का एक limitation है, right? For very small motors, they can provide the required magnetic field. लेकिन जैसे जैसे मोटर बड़ी हो जाती है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस अ मोटर रिक्वायर्ड टू रन अ ट्रेन, उसके लिए तो परमानेंट मैग्नेट रिक्वायर्ड वुड बी ऑफ एनॉर्मस साइज एंड मास, okay, which is not practical. Okay, so we use electromagnets especially for commercial strong motors, powerful motors. Now there is a term called armature. What is it and why do we use it? Sir, it is a pair of split rings. No, sir. वो कम्यूटेटर होते हैं. पेयर ऑफ स्प्लिट रिंग्स आर कम्यूटेटर्स. आर्मेचर एक पार्ट है मोटर का, वो क्या है? सर आर्मेचर एक So coil with soft iron core. यस. तो जो मोटर है हमारी, ठीक है ना, आपने मोटर्स तो देखी हैं, ऑल्दो वो डीसी मोटर्स नहीं होती हैं जो आप नॉर्मली लाइफ में देखते हैं, जैसे पानी चढ़ाने के लिए मोटर एटसेट्रा, राइट. यू हैव सीन मल्टीपल मोटर्स. दे आर एसी मोटर्स, देयर कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट, बट समझने के लिए आपने देखी तो है ही मोटर्स, राइट. तो इनके अंदर ऐसे आप देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, जिसपे क्वाइल चढ़ा हुआ होता है और एक आयरन कोर होता है, उसके ऊपर क्वाइल्स चढ़े होते हैं मल्टीपल, राइट. यू हैव सीन दिस स्ट्रक्चर. ये इसके अंदर होता है.
अगर कभी रिपेयर होती हुई मोटर देखी है आपने तो, ठीक है ना। तो ये जो चीज है सॉफ्ट आयरन कोर विद द कॉइल्स, ये पूरे को मिलाकर बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है। और ये इसलिए यूज की जाती है क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉइल्स भी हैं और सॉफ्ट आयरन कोर भी है, सो इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ। द पावर, फोर्स, टॉर्क, राइट, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, एनी टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, राइट। इट increases the torque or it increases the strength of the motor. Multiple words can be used. Okay, they mean slightly different things, but you can use any of those words. Okay, understood this part? So armature इस चीज को बोलते हैं soft iron core with coils. What is the role of commutator in a DC motor? And what would happen if commutators are not used? So commutator क्या part होता है DC motor का? Split rings. Split rings are the commutators. Okay, so जो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे करके जो रिंग्स होते हैं जिसके ऊपर हमारे ब्रशेस होते हैं वो स्प्लिट रिंग्स होते हैं ऐसे, ठीक है। आधे कटा हुआ होता है वो रिंग, अगर हम इसको साइड से देखें तो ऐसा दिखाई देगा। ओके, तो ये स्प्लिट रिंग्स आर कम्यूटेटर्स। What is the meaning of commutator? That changes the direction of current flow. Direction of current flow. ठीक है। So commutator वो चीज है जो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो को चेंज करता है, और इस केस में डीसी मोटर में कौन ये अचीव करता है? स्प्लिट रिंग्स हमारे लिए ये अचीव करते हैं। अंडरस्टूड? अगर मान लीजिए मैं स्प्लिट रिंग की जगह इसको फुल रिंग बना दूं, लाइक दिस, इट इज अ फुल रिंग, आई जॉइन दिस, तो क्या होगा? Commutator Then use after every half rotation, the direction of current would change, and thereby the direction of force would also change. very good. So motor, rather than rotating, will just go to and fro. Motor will just oscillate. It will not rotate. ठीक है ना? What you said is correct. It will not rotate. After half the cycle, the direction of force or the direction of torque will change and it will come back and then again. So it will just oscillate. And that is not what we usually need. We want our motor to run in a circular motion. Okay, so it is important to use the split rings, but this is only true about DC motors, और हमें बस उसी तरह की motors पढ़नी है फिलहाल. What did Faraday discover? What is this effect known as? Okay, now we are entering the third part of the chapter, which is the final part, which is what Faraday discovered. What is that? So magnetism also produce electric current. Very good. Okay, so he figured out that magnetism can cause current, and this effect is known as magnetism producing current is known as Electromagnetic induction. electromagnetic
magnetic Magnetic induction. ठीक है, इंडक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज में किसी चीज को पैदा करना, यूजुअली विदाउट गेटिंग इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, ओके, सो व्हाट्स अ गैल्वेनोमीटर? सर किसी चीज का वजन नापना। वजन नापने के को गैल्वेनोमीटर तो नहीं कहते हैं। It is a current detecting device. Yes. Okay, it's a device used to detect. Okay, this is the important word. ठीक है, अगर आप मेजर लिख देंगे डिटेक्ट की जगह तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मेजर कौन सी डिवाइस करती है करंट को? Ammeter. एमीटर। ओके, जो एमीटर होता है वो करंट को मेजर करता है, लेकिन डिटेक्ट खाली हमें डिटेक्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि आखिर गैल्वेनोमीटर एमीटर से डिफरेंट क्यों होता है, उसमें व्हाट इज डिफरेंट? सी एमीटर Galvanometer shows the direction in which the current is flowing, and the ammeter measures that current. ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? डिटेक्ट करता है केवल, पहली चीज। ठीक है, और एमीटर मेजर करता है। लेकिन वो तो पहली बात हो गई, लेकिन मेजर करके भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो हम मेजर करके ही डिटेक्ट क्यों नहीं कर लेते? मतलब डिटेक्शन के लिए अलग डिवाइस और मेजरिंग के लिए अलग डिवाइस, ऐसा क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव। Okay, galvanometer is very sensitive device. It can detect very small amount of current, लेकिन जो एमीटर है वो उतना सेंसिटिव नहीं होता है, लेस सेंसिटिव। ओके, दूसरी क्या बात है? गैल्वेनोमीटर इज बाई डायरेक्शनल नॉर्मली। मतलब जो गैल्वेनोमीटर है वो इधर भी पॉइंट कर सकता है और इधर भी पॉइंट कर सकता है, and the direction it points also tells us about the direction of the current. But emitters usually are unidirectional. Okay, तो वो एक ही डायरेक्शन में करंट को मेजर करते हैं यूजुअली। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा एमीटर नहीं बना सकते जो दोनों डायरेक्शन में मेजर करे, बना सकते, लेकिन यूजुअली नहीं होते हैं, राइट? Because we want as much scale as possible for us for deflection, तो उसको इसी तरह जनरली कॉमर्शियली इसी तरह बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा, अगर हमसे डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ना, वो ये है कि गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन बिकॉज इट इज वेरी सेंसिटिव, एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड हेंस इट इज लेस सेंसिटिव। ओके, बट गैल्वेनोमीटर का इश्यू क्या है कि वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है बहुत इजीली, एमीटर डज नॉट। ओके, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द फाइंडिंग्स ऑफ ऑर्स्टेड एंड फैराडे, राइट? तो we started the chapter, first part was because of findings of Oersted, the last part is because of findings of Faraday, right? ये दोनों findings को थोड़ा compare and contrast, a couple of points if you can tell me. Oersted ने क्या बोला हमें? Oersted ने बोला कि current can cause magnetism.
ठीक है, फैराडे ने क्या बोला, that magnetism can cause current. That is the key difference, right? लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? Both establish relationship between magnetism and electricity. ठीक है, दोनों ही की फाइंडिंग्स इन दोनों में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती हैं. वन वे रिलेशनशिप इज गिवन बाय ऑस्टेड एंड द अदर वे इज गिवन बाय फैराडे, बाय एंड लार्ज, मोटे मोटे तौर पर. ठीक है, okay, can you please read this question and answer? I'll just mark the attendance in the meantime. Right hand rule. The Fleming's right hand rule. Okay, what convenient rule can be used to identify the direction of current induced by moving conductor in a magnetic field? Okay, this can be done by Fleming's right hand rule. Fleming's right hand. Thumb rule. No, it's Rule. not a rule. Thumb rule. Thumb नहीं बोलेंगे, केवल right hand rule बोलेंगे. Fleming's right hand rule. ठीक है, so how does this rule work? We will use the right hand, right? Again The in the thumb same is- way. So in which center finger tells us about the direction of the current, Mhm. and the thumb tells us about the direction of the force. Which one? The thumb. देखिए इसमें फोर्स नहीं है कहीं पे भी, राइट? सो सेंटर फिंगर जो है वो तो C फॉर करंट, राइट? F फोर फिंगर है F, सो F फॉर फील्ड. Field. तो ये क्या है? ये इसमें है मूवमेंट. ठीक है, तो अगर मूवमेंट जो कंडक्टर का है, क्या चीज मूव कर रही है? कंडक्टर मूव कर रही है. हम तब यूज करते हैं, मूविंग कंडक्टर लिखा है मैंने यहाँ पे. ठीक है, तो कंडक्टर मूव कर रहा है, तो जो कंडक्टर का मूवमेंट है वो थंब की डायरेक्शन में है, फील्ड F की डायरेक्शन में है, और करंट जो इस कंडक्टर में इंड्यूस होगा, पहले से करंट नहीं है, जब मैं मूव करूंगा तो एक करंट इंड्यूस होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा? सेंटर फिंगर की डायरेक्शन. ओके, Okay, sir. understood? Okay, so we will take a couple of examples. I think then it will be even clearer. Let's do a few more questions. The field inside the long solenoid is 0, constant in the middle, but decreases towards the end, same all through. बताइए, we are running out of time. Quickly, if somebody can answer this question. Sir, same all through. हाँ, तो वो perfectly correct answer नहीं है. The perfectly correct answer will be C. Okay, कई बार लिखा होता है कि वो सेम है, लेकिन it is constant, it is same throughout in the middle part. ठीक है, तो अगर